Usually on the show, we bring together questions that matter to you on a day's top focus story. Now, today, this time in the country, there is only and only one story that matters. A story that directly affects a lot of us. A lot of us know about people who've given the NEET exams or who will be giving the NEET exams in the near future. And that's the reason why we decided to begin with our focus on what has happened vis-a-vis the NEET story. And we'll bring up those questions here on our screens for you here. Do remember, when you talk of the NEET exam, that again is very, very important in the run-up to the big medical examinations. But people are asking, that is NEET a scam already? Is there a scam? Is there something amiss in the entire story? Is NEET not NEET? Again, this is something that I have seen and heard a lot of you talking about, that it is not a NEET exam. Why do you think it's not a NEET exam? Because of many discrepancies that we have seen. So what really is the truth behind 720/720 marks? Now, this is the maximum, remember, that any candidate can score in the exam. 720 on a 720, and multiple students have got it this time. The NTA, that remember is the agency that carries forward this exam, conducts the exam. Is that not transparent when it comes to GRACE exams? Lot of conversation also about that. More than 13 lakh students are on the streets. They are very, very angry. They are livid. Now, they also say that we've reached the Supreme Court. We want a solution. But what has happened in the Supreme Court, we'll tell you here on the show. Also, the very first response, ladies and gentlemen, that has come in from the government. The Education Minister, Dharmendra Pradhan, has spoken on the entire issue. He's met with the executives who hold the exam of the NTA. What does he have to say, and what do we know from the agency itself? All that is what we'll bring forward in the show for you in just a moment. We'll also have a lot of panelists joining us, including students who've been out there at the Jantar Mantar protesting. What do they want? Are they satisfied with what the SA has said so far? Now, what really has gone wrong this year? Why do we have students who are out on the streets? Why do students say, and the Supreme Court also now saying, that the sanctity of the exams have been affected? What really has the agency said so far that conducts this entire exam? Is there some amount of fear that there has been a paper leak? What about the GRACE exams? How is it that you have seen an unusual number of toppers this time around? Ladies and gentlemen, 67 toppers. 67 toppers this time, and all of them, I was looking, the score is perfect. 720 out of 720. How did that happen? Now, on your screen, some more details of the entire process of this NEET exam that has happened. Students continue to say, we are not happy with what has happened so far. There was the allegation that the GRACE marks have been given without any discretion, but more than 1,500 students will be now appearing for a retest, is what we do know. But the students said right from day one, we do not want this. We want you to scrap the exam and have the exam again. That for the moment is not happening. I have a full panel of guests joining us. This will also include students who've been sitting at the Jantar Mantar, and they say that this is a satyagrah. They say this is a fight for justice. So clearly, when it comes to exams, when it comes to students and their future, this quote-unquote ad hocism by those responsible, should that not be questioned? We'll do exactly that. We'll ask questions of the government and a lot more, individuals responsible. But for the very first time, the Education Minister, Dharmendra Pradhan, is breaking his silence on the entire matter. He said he's aware of what's going on, but he also says that he continues to back the NTA, the agency that conducts the exam. एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। देखो, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रिट पिटीशन को अनुध्यान कराया।
So the minister saying that there is no paper leak. He's saying students do not need to worry. So after that assurance, are the students really happy? What happens on the road ahead? These are important questions, and that's why we decided, instead of just looking at the politics of this, that also continues to soar because the opposition says we need a CBI probe in this, we need to have a joint parliamentary committee looking into this. They said it's a very serious issue, right from the Congress to the DMK. But let's also get in students here who have appeared for NEET, who are looking at appearing for NEET, and who are very, very concerned about what will happen from here on. We do have Dilpreet Kaur, who's a NEET student. She's joining us, along with 4 other students that you see on the bottom there on the screens. We'll also have Mr. Mecca from the Congress also joining us. Vikas, Harinder, Harsh and Anuj are all students who right now are sitting at the Jantar Mantar as we bring to you this coverage live. Mr. Mecca, I just want your permission before I open this up with students, because I want to hear what they have to say, whether they are satisfied with what has happened so far or not. So Vikas, आपसे शुरुआत करते हैं. Are you satisfied with all the action that has happened so far in the Supreme Court and vis-a-vis the government? विकास, आप सुन पा रहे हैं? Okay, we'll just try to fix that line because I think and I fear that they are not able to hear me. But Dilpreet has a better connection, I'm told, and she might be able to hear us. Dilpreet, thank you for speaking to us on Times Now. Tell me something. What is your reading of what has happened so far? Hello, ma'am. First of all, I am not satisfied with this decision of the court कि सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, पर उसका कोई प्रूफ एनटीए ने नहीं दिया कि कितने बच्चों को एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स मिले हैं. इसका पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा गया है. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई मार्क्स, मेरे 640 मार्क्स है आउट ऑफ 720. तो 2021 में मेरी रैंक इस मार्क्स पे 6000 होनी थी. 2022 में 7000 और 23 में 8000, पर मेरी इस बार की रैंक है 38,362. 38,000. यस मैम, इट इज जस्ट 5 टाइम्स. तो ये सिर्फ 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स, ये तो कहीं से भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो गया है. दिलप्रीत, आपको क्या लगता है, क्या गड़बड़ हुई है इस बार? मैम, पेपर लीक का बहुत जगह से आ रहा है न्यूज कि पटना में, बिहार में जो भी एफआईआर वगैरह हुई, तो उसमें एनडीए ने कोई एक्शंस नहीं लिया. तो ये चीज पहले ही हो जानी थी, नीट के पहले ही, जब अगर पेपर लीक हो चुका था. क्योंकि ऐसे हम लोग को भी मोमेंटम फिर से ब्रेक हुआ, अगर अब फिर से रीनीट होगा तो हम लोग को बनाना ही पड़ेगा मोमेंटम अपना. तो ये चीज पहले से ही हो जाना था. ठीक तो है, सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए थी. बिल्कुल. आपके आई थिंक जो कंसर्न्स है और आपने जो एक रैंक में फर्क दिखाया है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वन मस्ट रियली बी कंसर्न्ड अबाउट. एंड आई really hope and pray that people who can change the system are able to do that, Mr. Mecca. I want to see if we can go back to, students that we had actually gotten from Jantar Mantar. They are back on the screens. Vikas, Harinder, Harsh, Anuj. क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम. जी, तो सबसे पहले विकास, आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैम. हेलो. जी विकास, सुन पा रहे हैं आपको, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये 1563 बच्चों का रीनीट होगा सिर्फ, तो मैम उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं. क्योंकि मैम जो असली मामला है वो है पेपर लीक, जिसकी वजह से इतनी रैंक बढ़ी है, और उस चीज़ को ये एनटीए छिपाना चाह रहा है उस चीज़ को. तो इस चीज़ से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो एनटीए के खिलाफ सीबीआई जांच हो, और दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि लगभग 24 लाख जो बच्चे हैं उनका रीनीट होना चाहिए. ठीक है, आपको लगता है कि ये पेपर लीक है और इसलिए यहाँ पर पूरी जांच की जरूरत है. हरिंदर, आपको क्या लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस पूरे मसले पर सब लोग दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते, एनटीए कहता है कोई पेपर लीक नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान भी कहते हैं कोई पेपर लीक नहीं है, हरिंदर? मैम विदाउट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आप कैसे कह सकते हो पेपर लीक नहीं है? अगर पेपर लीक नहीं है तो पटना पुलिस ड्यूटी है, फिर तो
पटना पुलिस झूठ बोल रही है, पटना पुलिस के एफआईआर झूठ बोल रही है, पटना पुलिस ने जिन बच्चों को गिरफ्तार करा वो झूठ है। तो अगर, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है ना किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब 13 लोग बेकसूर है फिर। तो ये पटना पुलिस की जो एफआईआर है उसको कंसर्न क्यों नहीं कराया था? सीबीआई ने तो वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठाई है ना। आप बिना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ भी नहीं हुआ है? तो आप सिर्फ 1563 के ग्रेस मार्क्स पे आपको लगा सिर्फ ग्रेस मार्क्स का है मुद्दा है। एक्चुअली में मुद्दा ग्रेस मार्क्स का है ही नहीं, ये मुद्दा है पूरे पेपर लीक का। क्योंकि 5 तारीख को ही पटना पुलिस ने बच्चों को पकड़ा है, जिसमें उन्होंने खुद कबूला है कि 20 से 25 बच्चे ऐसे थे जो हमें एक रात पहले ले जाया गया, उसके नीचे उसमें हमको पेपर रटवाया गया, उसके बाद हमने पेपर दिया है। तो ये फैसले से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे, यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी जांच हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठे, और उससे पहले जब तक आप एनटीए के खिलाफ कुछ, यहाँ तो आपको एनटीए अपनी सफाई नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, तो उससे पहले काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं काउंसलिंग पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन मैंने अभी एक इंफॉर्मेशन देखी कि एनटीए ने कहा है कि जो पहले राउंड की काउंसलिंग है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्लियरली आई थिंक आप लोग जो कहना चाह रहे हैं वो बात एनटीए अभी नहीं मान रहा है। अब हर्ष और अनुज, मुझे लगता है आप दोनों एक साथ हैं, तो आप एक एक करके अपनी बात रखें और उसके बाद वील ओपन दिस अप टू आवर पॉलिटिकल पैनल ऑल्सो। हर्ष, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? अनुज, आप तक आ रही आवाज? यस मैम, आ रही है जी, बताइए। यस मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो 1563 बच्चों पे सिर्फ एक्शन ले रहे हैं, आप पेपर लीक को बिल्कुल छुपाई क्यों जा रहे हैं? आपने यहाँ 1563 बच्चों को रीनीट कराने की बात करी है, तो इससे जो ग्रेस मार्किंग वाला सिस्टम है वो तो चलो हम लोगों का सॉल्व हो जाता है, लेकिन जो आप पेपर लीक वाले मुद्दा, जो कि मेन इश्यू तो पेपर लीक है ना, आप इस पे कोई एक्शन ले नहीं रहे हो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें भी एक बार भी पेपर लीक पे तो कोई चर्चा करी नहीं है इन लोगों ने। ये लोग सिर्फ जो है ग्रेस मार्किंग पे ही बातें कर रहे हैं, जबकि पेपर लीक की मेन इश्यू है और इसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सही से। और मैं मीडिया से भी कहूंगा कि आप जाए पटना और वहां पता करेंगे किस मास लेवल पे ये पेपर लीक हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि 1563 बच्चों का आप दोबारा एग्जाम करा देंगे, तो इससे तो सिर्फ 1563 बच्चों का मामला सॉल्व हो रहा है, और जो रैंक ये 20 से 25,000 एक बार में बढ़ रही है, ये नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है ना। जी ठीक है। अब हर्ष, मुझे बताइए, आप तमाम स्टूडेंट जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं, हर स्टूडेंट कहता है पेपर लीक हुआ है। अब बिहार से जरूर इस तरह की घटना हुई है कि एक एफआईआर हुई है, कुछ लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है, लेकिन हर्ष, क्या इसके अलावा भी और किसी सेंटर से और कोई स्टूडेंट से आपने पेपर लीक की बात सुनी है? बिल्कुल कई लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और इस चीज के, बोलिए। या पेपर लीक हुआ है, इस चीज की कई प्रूफ है, क्योंकि अपन लोगों को फटे हुए पेपर भी मिले हुए हैं, जले हुए पेपर भी मिले हैं, और इसके लिए 12 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, और उनकी एफआईआर में साफ साफ लिख रखा है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। और हाँ, जो ग्रेस मार्किंग वाला सिस्टम है, आपने वो तब हटाया जब हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतनी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, तब आपने इस चीज को सॉल्व किया है कि जो ग्रेस मार्क वाला सिस्टम है इसको तब आपने सॉल्व किया है, कहा कि आप जो ग्रेस मार्किंग को हटा देते हैं। अगर ये सही था तो क्यों हटाया आपने? गलत था कहीं ना कहीं तक। और जब इस चीज को झज्जर के प्रिंसिपल जी से पूछा गया तो वो कह रही है कि हमारे यहाँ कोई भी टाइम कम नहीं पड़ा था। मतलब आप इस चीज में कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं और वो छुपा रहे हैं आप, क्योंकि झज्जर की प्रिंसिपल खुद कह रही है कि मेरे यहाँ टाइम पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और टाइम पे ही सबमिट हुआ है, लेकिन वो लोग बोले नहीं, उन लोगों को 25 मिनट कम मिले हैं और इसलिए उनको हमने ग्रेस मार्क दिया है, जबकि प्रिंसिपल खुद कह रही है कोई भी टाइम लॉस नहीं था यहाँ पे। ठीक है, आप लोग गलतियां कर रहे हैं, उनको छिपाने के लिए कई बातें कह रहे हैं, और जो पेपर लीक हुआ है इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों के तमाम जो चार्जेस हैं बहुत सीरियस, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई मिस्टर मेका दिस एक्चुअली वारंट्स अ फुल इन्वेस्टिगेशन. You know, I was of the opinion that we should keep netas out of, you know, something that really relates to students, but at the end of the day, ultimately it's netas who are a part of our system, Mr. Meka, who need to change the system, because time and again, and this is, you know, one figure that we must tell all our viewers about, just in the last 5 years, viewers, in 15 states, 41 cases of paper leak. That is our examination system. And it's not that this has just happened in the Congress ruled state or the BJP ruled state. The problem is that it's happened all throughout. All political parties said, hum ye badlenge. We will change this. But like you've heard all our friends here speaking,
That has not happened. I also want to invite into this conversation Prashant Barthwal, who's a political analyst, also a professor at the Delhi University. And Mr. Mecca, before I come to you, Prashant, I hope you've been able to hear all these students. All these students, they are not happy. They are not satisfied with whatever has happened so far, Prashant. Apologies, I think we've just lost that line, Mr. Mecca. But the government says, leave it to us. We will figure out what needs to be done. But do not create this entire fear of a paper leak where there is no paper leak, Mr. Mecca. See, first of all, see, I don't have a mind to politicize this because the youngsters and students, they give their life to these exams. Somebody prepares for a NEET, somebody prepares for a public service commission. If there is no transparent schedule that is coming up the exam, if there is no guarantee of the exam due to paper leaks and all mismanagement, what will these people do, right? I have gone through that process. See, I need to have a guarantee that, hey, every December in March, I get the exam. In April, I'll get the results. I will prepare for the next year if I am not able to make it. But I don't even know when this thing will happen, or even if it happens, will this thing be valid or not? So that is great injustice that we are doing to our youngsters. Okay, so this is not Mr. about Mecca, any party or anything. When you say this, see, because there are lakhs and lakhs of students who are affected by this. A lot of those students are also on our broadcast here on Times Now. And the last thing that anyone wants is to play with these students' lives. Ultimately, remember, there is a lot of hard work that goes into achieving what they are achieving for us. So can the political parties and the politics wait, sir? Yeah, definitely they should wait. See, listen to me. We are just celebrating that the fact that we have completed an election of 140 crore people. Oh yeah, there are questions, doubts on the election process. Still we did it with a reasonable thing. We have the election rules, Form 17C and all that. But why? We are not able to conduct an exam for a few lakhs of students. You are giving me the numbers, right? So many paper leaks. So why? When the netas want, you are able to pull off an election. You can send a ballot box on the back of a camel, right? But we are, as an entire society, bureaucracy, politician, everybody fails to conduct a simple exam. Come on, what are you kidding at? Okay, Mr. Mecca, you know, I'm still struggling to connect with Prashant because I was apparently told that he's someone who is still saying let's wait and watch. But before he comes back, I want to quickly get back to students. I'm told that where they are protesting, they are not allowed to stand there for too long. And क्योंकि ये सब हमारे शो के लिए जुड़े हैं, जरूरी है कि अब इनकी भी बात सुने. तो एक एक करके दोबारा सबके पास चलते हैं. हर्ष, आपने अभी तक नहीं बोला है. हर्ष, मुझे ये बताइए कि आप लोग इस समय जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब कितने दिन तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? अगर सरकार ये कहती है कि कोई पेपर लीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्या करेंगे आप लोग? तो पेपर लीक तो बहुत ह्यूज अमाउंट में हुआ है. आप सबको पता है इस चीज के हाँ, पेपर तो बहुत कसके लीक हुआ है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं. ये अपनी गलती को मान ही नहीं रहे हैं कि हमारी गलती हुई है कुछ. तो आगे क्या करेंगे आप लोग? मतलब अभी तो हमने आगे का कुछ सोचे नहीं, क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे थे कि काउंसलिंग होगी और हमको गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए कॉलेज मिल जाएगा. लेकिन ये इतना ज्यादा हम लोगों के साथ अनफेयर हुआ है. इस चीज पे हमको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा. और ये लोग बोल रहे हैं कि पेपर दोबारा कंडक्ट करवाया नहीं जा सकता. अगर आप देखें तो हर बार जो एक विधायक लड़ते हैं और सांसद जी लड़ते हैं, वो मतलब हर बार एक इस्तीफा दे देते हैं कि अब अगली बार मैं सांसदी वाला चुनाव भी लड़ लूं, तो उसका दोबारा चुनाव वहां हो सकता है, लेकिन यहाँ दोबारा पेपर नहीं करवाया जा सकता है. देखिए, आपने जो तर्क यूज किया ना, वो तर्क से मैं भी अग्री करती हूँ कि जब पैसों की बात आती है, नेता अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर और एग्जाम के ऊपर नहीं कर सकते. बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया. हरिंदर और विकास, आप लोग भी अब मुझे बताइए. इससे पहले आई ऑल्सो गेट इन दिलजीत हियर. हरिंदर, what is the road ahead? What happens from here on? Ultimately, you know, आप लोगों की आगे पढ़ाई सफर कर रही है, फ्यूचर है, करियर है, your families also get affected. हरिंदर, क्या करेंगे आप लोग आगे?
मैम अभी तक तो हमें कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम उम्मीद ही लगा सकते हैं बस सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे हक में फैसला आए, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है ना। अगर नहीं फैसला आया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो करेंगे भी नहीं दोबारा। क्या फायदा है ऐसे का जो मेहनत करने के बाद भी हमारे नंबर ना आए। तो हमें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सुप्रीम कोर्ट हम 100 लोग अपने जजेशरी पे वो कहते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट का। बच्चों की बिल्कुल भी डिमांड सुनी नहीं जा रही। एनटीए ने कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं है तो कोई पेपर लीक नहीं है। बच्चा इतने दिनों से पागल है जो चिल्ला रहा है, पटना पुलिस पागल है क्या चिल्ला रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 1563 तो लिस्ट दे दीजिए आप हमें। अगर आप कह रहे हो कि 1563 है तो लिस्ट दे दीजिए आप हमें। उनकी लिस्ट भी तो नहीं है फिर हमारे पास, हम कैसे कहते हैं 1563 ये नंबर में। और देखिए आई थिंक जरूरी है कि इस तमाम जो सवाल उठ रहे हैं कोई ना कोई इसका जवाब दे। मैं क्विकली एक क्वेश्चन विकास से लेती हूँ, उसके बाद वील हिट आवर फर्स्ट ब्रेक हियर। विकास, मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रही थी, तमाम और स्टूडेंट्स भी ये लिख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट गए तो ये ग्रेस मार्क वाला मामला सामने आया और उनके लिए रीटेस्ट की बात आई है। बट व्हाट हैपेंस टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अप्रोच्ड द कोर्ट, उनका क्या होगा? मैम सबसे पहले तो हम मांग करेंगे कि एनटीए की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसी से पता चलेगा क्या है मामला क्या नहीं है, और फिर उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला लेना चाहिए था। सबसे पहले तो काउंसलिंग पर स्टे लगना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद इतना डिसीजन लेना आसान नहीं रहेगा, फिर ना ही हमें न्याय मिल पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और काउंसलिंग पर स्टे लगना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए। लास्ट वर्ड है दिलप्रीत आपके लिए, 30 सेकेंड्स। यस मैम। मैम मुझे लगता है कि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी इन्होंने बोली है वो एक एनटीए से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो एक एकदम से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले कि मुझे अगर अपना ही रिजल्ट चेक करना हो तो मैं अपने आप को तो स्कोर फुल ही दूंगी ना। तो अपनी चीज को छुपाने के लिए तो मैं तो यही बोलूंगी कि मैंने तो चीटिंग की ही नहीं है। तो इससे बेटर है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी को देना चाहिए कि वो रीचेक करे। अगर कुछ भी पेपर लीक सा निकल करके आता है, अगर नहीं आता है तो वी विल एक्सेप्ट कि ठीक है हम लोगों ने पढ़ाई, हम लोगों ने 3 साल मेहनत कम करी, इस वजह से कट ऑफ हाई हो गया। पर अगर पेपर लीक का आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, I think all students are pretty sensible, Mr. Mecca, and you would agree with me on that they are all very smart, very, very practical, and they realize the value, the worth of every mark that they fight for. So I quickly want to thank Dilpreet, Vikas, Harinder, Harsh, Anuj, and also Mr. Mecca for joining us. And do remember, this is going to be a big Times Now campaign, as we'll keep our eyes focused on this one story that should and it does matter to all of us. Has there been a scam? Has there been a paper leak? Will we have clarity? Will we see some action against the agency? I thank all of you for joining us. Time for us to head into a break.